ملک میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اب اس وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 2002 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 23,100 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 4,960 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ کورونا مریضوں کے حوالے سے ملک میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 98,941 تک جا پہنچی ہے، جن میں سے 33,465 مریضوں نے اس وائرس کو شکست دی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں کورونا مریضوں کی تعداد ایک مرتبہ پھر سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں کورونا کے مصدقہ مریض 37,090 ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں 36,364، خیبر پختونخوا میں 13,001، بلوچستان میں 6,221، اسلام آباد میں 4,979، آزاد کشمیر 361 اور گلگت بلتستان میں 927 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 67 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں اس وائرس سے لقمہ اجل بننے والے افراد کی تعداد 2002 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں اموات بھی سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 683، سندھ میں 634، خیبر پختونخوا میں 561، بلوچستان میں 54، وفاقی دارالحکومت میں 45، گلگت بلتستان میں 13، جبکہ آزاد کشمیر میں 8 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ماسک کے استعمال پر پہلے سے زیادہ سختی ہوگی۔ ماسک کے بغیر نظر آنے پر ایکشن لیا جائے گا۔ لوگ عوامی مقامات پر خود اور اہل خانہ کو بغیر ماسک نہ جانے دیں۔ حکومت نے کورونا وائرس سے لوگوں کے تحفظ کے لیے جاری کیے گئے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کی سختی سے نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ماسک پہننا لازمی ہے اور اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کا استعمال کورونا کے خلاف انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس سے وبا کے پھیلاؤ کو 40 سے 60% تک روکنے میں مدد ملتی ہے۔ میں اب سب لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جن جن جگہوں کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہاں پہ خود بھی اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی ماسک پہنے بغیر مت جانے دیں۔ اس میں آپ کا بھی بچاؤ ہے، دوسروں کا بھی بچاؤ ہے اور آپ کی فیملی کا بھی بچاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ دکانوں، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک پہننا ضروری ہے۔ ضابطۂ کار پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کہ ماسک کا استعمال جو ہے اس کی بھی پہلے کی نسبت زیادہ سختی کے ساتھ مانیٹرنگ ہوگی، اور اس حوالے سے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے جائیں گے کہ وہ لوگ کہ جو ماسک کے بغیر ان صورت احوال میں دیکھے جائیں گے تو ان کو تنبیہ بھی کی جائے گی اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس کے خلاف ایک مربوط حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ فرانسیسی ماہرین نے حادثے میں تباہ ہونے والے PIA کے طیارے کے بلیک باکس سمیت تمام ریکارڈ کو ڈی کوڈ کر کے ڈیٹا پاکستانی تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والے فرانسیسی ماہرین نے ایئر بس کے بلیک باکس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر، کاکپٹ وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کر کے تمام اہم شواہد اور ڈیٹا پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی کے حوالے کر دیا۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی اہم شواہد لے کر فرینکفرٹ سے 7 جون کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ فرانسیسی ماہرین نے حادثے میں تباہ ہونے والے PIA کے طیارے کے بلیک باکس سمیت تمام ریکارڈ کو ڈی کوڈ کر کے ڈیٹا پاکستانی تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والے فرانسیسی ماہرین نے ایئر بس کے بلیک باکس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر، کاکپٹ وائس ریکارڈر کو ڈی کوڈ کر کے تمام شواہد اور ڈیٹا پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی کے حوالے کر دیا۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والی پاکستانی ٹیم کے سربراہ ان دنوں فرانس میں ایئر بس کی ٹیم کے ساتھ طیارہ حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایئر کموڈور گزشتہ دنوں ایئر بس کی ٹیم کے ہمراہ جہاز کے دونوں اہم آلات لے کر فرانس روانہ ہوئے تھے۔ سول ایویشن کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ نے عثمان غنی کے فضائی سفر کے حوالے سے PIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر کو خط لکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی پرواز KP 8734 کے ذریعے فرینکفرٹ سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق عثمان غنی کی پاکستان واپسی کے حوالے سے ایویشن ڈویژن اور اسلام آباد ایئرپورٹ انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان واپس پہنچنے کے بعد ایئر کموڈور 22 جون کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے، جس میں وہ طیارہ حادثے کے اہم شواہد سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کریں گے۔
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि शुगर बहरान पर सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेगा, चाहे कोई भी सेक्रेटरी या वजीर हो, सब के खिलाफ एक्शन होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री के लोग मनपसंद ज्यादतियां कर रहे थे। सियासी रहनुमाओं ने अपनी शुगर मिल्स बनाकर हेर फेर की, ये ढकी छुपी बात नहीं। गरीब का एहतसाब और इस्तेहसाल हर कोई करता रहा है, लेकिन अब चाहे कोई भी शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जवाब देना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी का कहना था कि शुगर बहरान पर सब्सिडी का मामला नेब को भेजा जा रहा है। नेब इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर शुगर मिल्स ने सब्सिडी के मद में कोई गलत काम किया है तो वो भी नेब देखेगी। कि ये हमारी रिकमेंडेशन है और वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव की है कि सब्सिडी का मामला, पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग, चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हों, वज़ीर हों, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हों, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर ने कहा कि शुगर रिपोर्ट के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरा मामला अपने ऊपर ले लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सुलेमान शहबाज की ईमा पर 20 अरब सब्सिडी देकर आवाम को चूना लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके दिन गिने जा चुके हैं। शाहिद खाकान साहब, आप पकड़े जा चुके हैं। वो 20 अरब सब्सिडी का जवाब दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर सब्सिडी मद में सबसे बड़ी ज्यादती की। आप तो यदे तुला रखते हैं चापलूसी में। आपने कहा आपके अब्बा और चचा तो खुद आपको सिर्फ 6-7 अरब रुपए की सब्सिडी देते थे, मैं आपको 20 अरब रुपए की सब्सिडी दूंगा। और चूंकि मैं बहुत ज़हीन हूं तो मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। तो हुजूर, आपके दिन गिने जा चुके हैं, अब आप पकड़ में आ गए हैं। अब जाइए और खुदारा अपनी 20 अरब रुपए की सब्सिडी का हिसाब दीजिए। पीपल्स पार्टी की एपीसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि एहतसाब का शिकंजा अब अपने हतमी मराहिल में है। बिलावल भुट्टो की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी तो बहुत कुछ होगा। दरअसल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ऑल शुगर डैडीज कॉन्फ्रेंस है। एहतसाब का अमल सख्त होता है तो बिलावल को एपीसी याद आ जाती है। बिलावल को मालूम ही नहीं उनकी हुकूमत को विफाक ने क्या क्या दिया है। उनको पता ही नहीं है कि उनकी हुकूमत को क्या कुछ फेडरल हुकूमत ने दिया, क्या क्या इमदाद दी गई, और क्या उनकी जो गलत पॉलिसीज़ थी, जो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो गलत पॉलिसी थी डे 1 से, उसको वो अब छुपाने के लिए रोज़ एक्यूजेशंस करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने हल्के N156 से कोरोना बचाव मुहिम का आगाज कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने मुल्तान की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील पर टाइगर फोर्स में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। शाह महमूद कुरैशी का अपने खिताब में कहना था कि मुल्क भर के नौजवानों ने जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील पर लब्बैक कहा, वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा कि नौजवान तहरीक इंसाफ को वो असासा हैं जिन्होंने हर कड़े वक्त में आगे बढ़कर मुल्क व कौम की खिदमत का बीड़ा उठाया है। इस वक्त पूरी कौम कोरोना की वबाई सूरत हाल में एक कड़े इम्तहान से गुजर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि हमने मिलकर बहैसियत कौम इस आलमी वबा से लड़ना है और इंशाअल्लाह इसे शिकस्त देना है। उन्होंने टाइगर फोर्स पर जोर दिया कि वो गरीब और सफ़ेद पोश तबका जो कोरोना वबा और मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के बायस घरों तक महदूद होकर रह गया है, उनका पता चलाना है और उनको राजदारी के साथ राशन पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि कराची की आबादी बढ़ रही है लेकिन पानी की किल्लत बरकरार है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 10 साल में कराची की आबादी दुगनी हो जाएगी लेकिन पानी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कराची को 1000 मिलियन गैलन योमिया पानी की ज़रूरत है। उनका कहना था कि कराची के लोग 100 से 150 मिलियन गैलन पानी बोरिंग से हासिल करते हैं। कराची में 300 मिलियन गैलन पानी का फुकदान है। जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 100 से 150 मिलियन गैलन पानी लोगों ने बोरिंग के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। अगर वो भी मैं शामिल कर लूँ तो 700 मिलियन गैलन हो गया और आज की तारीख में इस शहर में 300 मिलियन गैलन पानी का फुकदान है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि मंसूबे का 13 बार रास्ता तब्दील किया गया जिसकी वजह से तखमीना बढ़ा और ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए 13 बार मंसूबे का रास्ता तब्दील किया गया। आपको पता है, अपने मन पसंदीदा लोगों को नवाजने के लिए, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए
13 दफा रास्ता तब्दील किया गया। फिरदौस शमीम नकवी ने हुकूमत सिंध पर तनकीद करते हुए कहा कि मैं वजीर आजम इमरान खान से बार बार कहता हूं कि सिंध की हुकूमत नाअहल है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को कराची के अवाम ने वोट दिया, कराची के अवाम को कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करना होगा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि शहर में कचरे के अंबार है, सड़कें टूटी फूटी और सेवरेज तबाह है। आप हमें इन जालिमों के रहमो करम पर कब तक छोड़ते रहेंगे? इसलिए कि ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। अगर यहाँ हम बाकी बातें भी खोलते जाएं तो बेतहाशा बातें हैं जो जुल्म सितम इस शहर के साथ हो रहा है। न बसें हैं, न कूड़ा उठता है, बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पाइपलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जो इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। उनका मजीद कहना था कि K4 मंसूबा सिंध हुकूमत के पास रहा तो इससे 2 साल तक पानी नहीं मिलेगा। टिड्डी दल ने शुमाली व वस्ती बलूचिस्तान के कई अजला में तैयार फसलें और बागात को उजाड़ दिया है। बारिशों से खुश्क साली के असरात कम होने पर जमींदार पुरुम्मीद थे कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन टिड्डी दल के हमलों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सरसब्ज बलूचिस्तान में तवील खुश्क साली के बाद अच्छी बारिशों से हर तरफ सब्जा बागात और फसलें लहरा रही थीं। खुश्क साली और कोरोना वायरस से माशी तौर पर परेशान किसान खुश थे कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन टिड्डी दल के हमलों ने किला अब्दुल्ला, पिशीन, किला सैफुल्ला, जोब, लोहरालाई समेत बलूचिस्तान के साहिली व सहराई इलाकों मस्तूंग, नुश्की, पंजगूर, खारान और चागी में सेब, तरबूज, खरबूजे, प्याज, टमाटर, जर्द आलू, जीरे और दीगर तैयार फसलों और बागात को तबाह कर दिया। जमींदार बेबसी से अपनी आंखों के सामने फसलें उजड़ते देखते रहे। ज़राई माहिरीन का कहना है कि टिड्डी दल ने लाखों की तादाद में अंडे दिए हैं, जिससे इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ताहम जून के आखिर तक बलूचिस्तान से टिड्डी दल की अफजाइश का दौरानिया खत्म हो जाएगा। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौसर इकदाम नहीं किए, जिसके बायस उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। हुकूमत किसानों को रिलीफ पैकेज फराहम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने के फैसले की मज़ाहमत का ऐलान करते हुए कहा है कि वो मुलाजमीन के साथ खड़े रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने के फैसले की मजम्मत करते हैं। मिल विफाक से नहीं चलती तो सिंध हुकूमत इसे चलाने को तैयार है, विफाक हमसे बात करे। सईद गनी ने कहा कि हम जमानत देंगे कि पाकिस्तान स्टील से किसी मुलाजिम को नहीं निकालेंगे। ये गलत तासुर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी ने अपने बंदे भर्ती किए। पीपी दौर में पाकिस्तान स्टील मिल में कोई भर्ती नहीं हुई, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया था। 1996 से 2008 तक पीपी हुकूमत में नहीं थी, जबकि भर्तियां इसी दौरान की गईं। हो सकता है पाकिस्तान स्टील में कोई पीपी हमदर्द हो, मगर भर्तियां हमने नहीं की। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन को जवाब बनाकर स्टील मिल मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में स्टील मिल्स की नजकारी के फैसले को रोक दिया था। सवाल यह है कि हुकूमत ने स्टील मिल्स मामले पर CCI से मंजूरी ली है। जो फैसला CCI प्लेटफॉर्म से ना हो, हम इस पर मज़ाहमत करेंगे कि कोई भी ऐसा फैसला जो CCI के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, हम उस पर मज़ाहमत करेंगे बतौर हुकूमत। सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान स्टील के 9,500 मुलाजमीन इस फैसले को आराम से मंजूर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी होगी। स्टील मिल अपने ATM को देने से बेहतर है सिंध हुकूमत को दी जाए। तवज्जो का मरकज दरअसल पाकिस्तान स्टील की अरबों रुपए मालियत की जमीन है, लेकिन इसका मालिक सिंध है। सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया गया तो उसको नहीं मानेंगे। जिस मकसद के लिए जमीन विफाक को दी गई, अगर वो पूरा ना हुआ तो सुबह वापस ले सकता है। 9,500 लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा तो ये 9,500 मुलाजमीन इस फैसले को आराम से तस्लीम तो नहीं करेंगे। ये एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो कुछ ये करें, इनका अपना इख्तियार है, हक है इनका आईनी तौर पर। अदालतों में जाएं, जो भी तरीके का इख्तियार करें। पीपल्स पार्टी इनके शाना बशाना खड़ी होगी बतौर सियासी जमात। उन्होंने मजीद कहा कि असद उमर का माजी का बयान है कि पाकिस्तान स्टील मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँ। मुझे इंतजार है काबीना की मीटिंग में असद उमर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। MQM ने भी स्टील मिल्स मुलाजमीन को निकालने के फैसले की मजम्मत की। उम्मीद है काबीना में अमली मज़ाहमत करेंगे। उम्मीद नहीं, मगर शायद GDA और कराची से PTI वजीर भी फैसले की मुखालिफत करें। तो मुझे इंतज़ार होगा कि उस कैबिनेट मीटिंग में असद उमर साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि MQM जिसने मजम्मत की है स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की,
انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹیل کا خسارہ 200 ارب سے زائد ہے، کوئی بھی یہ خسارہ نہیں بھرے گا، پاکستان اسٹیل جسے بھی دی گئی حکومت خسارہ ادا کر کے دے گی۔ وفاق ہم سے بات کرے، سندھ حکومت پاکستان اسٹیل کو چلانے کے لیے تیار ہے، جو فیصلہ CCI پلیٹ فارم سے نہ ہو ہم اس پر مزاحمت کریں گے۔ سندھ حکومت نے اس وقت دلچسپی ظاہر کی تھی کہ اگر یہ اسٹیل مل ہمیں دے دی جائے تو ہم اس کو چلا لیں گے۔ میں آج پھر یہ بات دہراتا ہوں، ایک بات تو واضح ہے کہ اگر اسٹیل مل کا خسارہ جو کہتے ہیں 200 ارب سے زائد ہے تو کوئی پرائیویٹ پارٹی، کوئی انویسٹر 200 ارب کا خسارہ دے کر تو اسٹیل مل نہیں لے گا۔